विजिबल है बेटा स्क्रीन? नो मैम। Now, is the Yes, screen ma'am. visible? Okay. Okay. So बेटा Fourier में देखिए, what is Fourier series? Can you tell me, anybody? Anybody, what is Fourier series? मैम टूल है जिस मैम पीरियोडिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। Yes, beta. So you have a periodic function f of x, right? So you start with, suppose your f of x is periodic with a period say 2l. So you have f of x is equal to f of x plus 2l, right? Then you can write its Fourier series as, then its Fourier series is a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity an cos of n pi x by l plus bn sine of n pi x by l, right? So this is the Fourier series of f of x if it is periodic with period 2l, and also it has to be piecewise continuous. Fx is piecewise continuous and it is periodic with period 2l. Then this is the Fourier series where what is a naught? A naught is, anybody? The information is, you know the function on the interval minus l to l. So a naught is, क्या होता है बेटा a naught? बताइए. What are the Euler formulas, beta? Yes. 1 by pi integration minus pi to pi fx dx. बेटा वो पाई ये में l है ना, तो 1 by l minus Yes, l to minus l L to L. f of x dx, and al will be, al क्या sorry an क्या होता है? 1 by l minus l to l f of x cos of n pi x by l dx. And what is bn? Bn is 1 by l minus l to l f of x sine of n pi x by l dx. Okay, so these formulas are called Euler's formula. तो मैं आपको summary दे रही हूँ बेटा Fourier की, right? So that you have an idea कि क्या हमने tutorial में करना है, right? So this is when your function is periodic with period 2l, and you know the function on the interval minus l to l. Now you can convert it to, say, if you have your interval from minus pi to pi, okay, in that case your l is pi, so that is why your series becomes, क्या बन जाएगी series? a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity, l की जगह पे pi put करोगे तो pi pi cancel हो जाएगा, an cos nx plus bn sin nx. okay, so a naught क्या हो जाएगा आपका 1 by pi minus pi to pi f of x dx, an क्या हो जाएगा sorry 1 by pi minus pi to pi f of x cos nx dx, और bn क्या हो जाएगा 1 by pi minus pi to pi f of x sin of nx dx. okay, so it's better to remember this series because this is a general one. Then you can always put l is equal to pi. okay beta, क्योंकि कई when I have seen students who are like confused कि कौन सी use करना है, तो you don't have to remember anything. Just you remember this general one, and then you can derive all the other series for particular cases from this general one. Am I clear beta? Yes, ma'am. okay, and there is one, ये दोनों किए होंगे, and then you have this one. Suppose your interval is a to b alpha to, फिर उसके बाद आपने क्या होगा alpha to alpha plus 2l, ये भी किया था ना बेटा? अगर इंटरवल आपका एक केस है, आपका इंटरवल इज फ्रॉम माइनस एल टू एल, एक है माइनस पाई टू पाई, एक है आपका अल्फा टू अल्फा प्लस 2l, उस केस में उसमें क्या हो जाएगी सीरीज? दैट इज a नॉट बाई 2 प्लस n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos ऑफ n पाई x बाई l प्लस bn sin ऑफ n पाई x बाई l, वेयर योर a नॉट इज 1 बाई l माइनस l टू, यहाँ पे अब माइनस l टू l की जगह पे
alpha to alpha plus 2l f of x dx, and your an is 1 by l alpha to alpha plus 2l f of x cos n pi x by l dx, and your bn is 1 by l alpha to alpha plus 2l f of x sin of n pi x by l dx. Okay, and then you had this series कि अगर आपका interval alpha to beta है, you don't have alpha to alpha plus 2l, your function is alpha to beta given, and on this interval the function is given and it is periodic with period. इसमें क्या है कि जो भी ये लेंथ है बीटा माइनस अल्फा वो उसका पीरियड है. इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जो है अल्फा बीटा में दिया हुआ है आपको. ओके, सपोज ऐसा दिया हुआ है, बाकी हर जगह वो रिपीट हो रहा है बीटा से लेके 2 बीटा माइनस अल्फा. ओके, जो भी ये लेंथ है उतनी लेंथ और आगे चले जाओ, वो सेम रिपीट होगा फंक्शन. दैट इज द मीनिंग. इन दैट केस व्हाट वी डू, वी अज्यूम दैट इन दिस केस वी अज्यूम दैट बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2l, और यहाँ से l की वैल्यू आ जाती है बीटा माइनस अल्फा बाय 2. ओके, देन योर इंटरवल जो है वो क्या बन जाएगा, अल्फा टू अल्फा प्लस 2l. तो ये वाली सीरीज काम करती है. देन दिस सीरीज वर्क्स. ओके, so this is just the formulas. Now we will do the questions, and then if you have any doubts you can ask me. Okay, look at the first question. So this is tutorial sheet 6. Look at the first question. Find the Fourier series of the given functions in the given interval. So have you tried, anybody? So I'm going to do this B part. You're given f of x is equal to 1 plus mod x, and the interval is minus 3 to 3. So you have to write its Fourier series. Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. Now you see your interval is minus L to L, right? So your Fourier series is a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity an cos n pi x. What is L, my? Here L is my 3. So 3 plus bn sin n pi x by 3, right? So where your a naught is 1 by 3 minus 3 to 3 f of x dx. Now what is f of x? F of x is 1 plus mod x. So this is 1 by 3 minus 3 to 3 1 plus mod x dx. Okay, now you should remember all the formulas of integration, beta, क्योंकि Fourier में you have to solve many integrals. You must have already seen that thing, right? Now इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? You will break your interval, right? Because you have mod of x. So you will write it as 1 by 3 minus 3 to 0 1 plus, when your x is negative mod of x will be minus x. Okay, and then you have 0 to 3 1 plus, when your x is positive mod of x is x dx, right? So what is this? This is 1 by 3 x minus x square by 2 minus 3 to 0 plus x square by 2 0 to 3. Okay, so now you just compute it. Can you tell me what will be the value? So this is your 1 by 3 0. When you put 0 you'll get a 0. When you put minus 3 you get minus 3 minus 9 by 2, and here you get 3 plus 9 by 2, right? So what is this? This is 6 plus 9 1 by 3. So this is 5. Okay, beta. So your a naught is 5. Similarly, you can compute your an. So what will be your an? An will be 1 by 3 minus 3 to 3 f of x into cos of n pi x by 3. Okay. Now see, you have to do lots of work here. कर लोगे बेटा integral compute? Can you do that? Again you will break it. 1 by 3 minus 3 to 0 1 plus, when you are from minus 3 to 0 it will be minus x. Okay, cos of n pi x by 3 dx, and then you are from 0 to 3 because your x is positive now, so 1 plus x cos of n pi x by 3 dx. Okay beta, now you will do integration by parts, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना बेटा, क्योंकि कई बार मोस्टली बच्चे इंटीग्रेशन में ही गलत कर देते हैं. कर लोगे बेटा खुद ही?
इसको compute. Similarly, you have to compute Bn, which is 1/3 minus 3 to 3 1 plus mod of x sine of n pi x by l dx. Okay? किसी को डाउट बेटा? नो मैम. एक्सक्यूज मैम. यस बेटा. मैम ये ओके ओके ये भी मैम ये -3 to 3 वाली लिमिट आपने ब्रेक कर दी ना, -3 से पहले 0 की तरफ, फिर 0 से 3 तक. हाँ जी बेटा, क्योंकि यहाँ Mod mod वाला x है ना बेटा. हाँ, ओके. तो इंटीग्रेशन के लिए हमें ब्रेक ही करना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज वी कैन नॉट इंटीग्रेट mod of x. तो -3 to 0 में x नेगेटिव है, इसलिए mod of x विल बी -x, है ना, और 0 to 3 में x पॉजिटिव है, इसलिए mod of x विल बी x, है ना बेटा. ओके मैम. Okay, so this is how you write the expansion of Fourier series. Okay, now look at the second question beta. Consider the function f defined on the interval minus pi to pi. So in the interval minus pi to pi, you are given a function f of x which is 1 for minus pi less than x less than 0. This function is x plus 1 for 0 less than x less than pi by 2. And this function is 2x for pi by 2 less than is equal to x less than pi. Right? And for all other x, function is defined by periodicity condition that f of x plus 2 pi is equal to f of x. Right? Okay. Determine the value where the Fourier series, without finding its Fourier series, determine the value where Fourier series of the function converges at the points. हमें बताना है कि x is equal to 0 पे किसको converge कर रही है, x is equal to pi by 2 पे Fourier series किसको converge कर रही है, और x is equal to pi पे किसको. Okay बेटा, okay, I forgot one thing बेटा. Last question में देखिए. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इसको easy कैसे किया जा सकता है बेटा? Can anybody tell me that here in the last question I have to compute a0, an and bn. So do I need to check something which will help me in computations? Class में आपने किया होगा बेटा? Anybody? Odd even function. Yes बेटा. Yeah. Yes, So, ma'am. yes. Odd So, even. हाँ, वो हमेशा चेक करना है क्योंकि उससे कंपटीशन आपको बहुत सिंपल हो जाएगा. Now you see बेटा, यहाँ पे let us go back to these formulas. यहाँ पे देखिए, जब भी आपका -L to L है इंटरवल, है ना, this is only odd even तभी चलेगा जब -L to L है. अब आप कैन यू सी दीज इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज? यहाँ पे देखिए, अगर आपका फंक्शन जो है वो ऑड है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन और एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो आपको याद है, अब एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल -L to L क्या हो जाएगा? 0 ना. यस मैम. तो यहाँ पे a नॉट डायरेक्टली 0 हो जाएगा. और ये देखो ये ऑड है, cos x क्या होता है? इवन फंक्शन के ऑड फंक्शन. Everybody knows what is even and odd function. कोई ऐसा है? अगर f of x is equal to f of minus x, what is this function? Even function. Even function. If Even f function. of x, if f of minus x is minus of f of x, this is odd function. So cos is an even function Even or odd function. function? Even Even function. Even Now function. you see, if f is odd, cos is even, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? odd ना. Odd function. यस मैम. Again इस केस में फिर a n भी 0 हो जाएगा. ओके, और सिर्फ बी एन नॉन जीरो आएगा आपका. तो जब भी आपने देखा कि आपका फंक्शन ऑड है, तो यू डोंट नीड टू कंप्यूट ए एन एंड ए नॉट, जस्ट पुट इट 0, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशंस भी करोगे पूरी, फिर 0 ही आएगा. अंडरस्टूड? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस विल सेव लॉट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशंस. और अगर एफ इवन है तो ए नॉट कुछ आएगा, ठीक है, ए नॉट नॉन जीरो होगा. और एफ इवन है, कॉस भी इवन है, इवन मिलके इवन आएंगे, तो ए एन भी आपको कंप्यूट करना पड़ेगा. फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ट्वाइस कर सकते हो, बट ये इवन है और ये ऑड है, तो एफ एक्स इंटू साइन एक्स ऑड हो गया, तो इस केस में बी एन क्या आएगा? 0. तो जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज दिस फंक्शन? एफ ऑफ माइनस एफ एक्स क्या आएगा? 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, विच इज सेम एज 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, which is f of x. So this is an even function. तो bn 0, तो मुझे bn कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ये चीज. Yes, ma'am. ओके, एंड वन मोर थिंग, ये भी ध्यान रखना है आपने,
कि ऐसा नहीं है कि अगर मुझे फूरियर सीरीज 2 से 6 में लिखना है, यहाँ पे इवन और चेक करने का कोई फायदा होगा अगर इंटरवल 2 to 6 है? नो No, मैम। ma'am. नो, है ना? तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर इवन और चेक कर रहे हो तो इंटरवल भी ऐसा होना चाहिए -L to L, क्योंकि इवन ऑड का यूज हमने कहाँ किया है? इंटीग्रल को 0 तभी होगा ना जब इंटरवल -L to L है, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके बेटा, यस अंडरस्टूड? मैम। या सो पहले क्वेश्चन में यू विल मेक श्योर कि बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू आर चेकिंग वेदर योर फंक्शन इज इवन और ऑड। हो सकता है कुछ भी ना हो, देयर आर फंक्शंस व्हिच आर नीदर ऑड नॉर इवन, है ना? फॉर एग्जांपल 1 + x - x स्क्वायर, दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, राइट? तो इसमें आपको सारे कंप्यूट करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, सबके पास ट्यूटोरियल शीट है ना बेटा? यस मैम। देखो, अभी हमने क्या किया, अभी हमने लिखा फूरियर सीरीज ऑफ f of x on the interval -L to L is a0/2 plus summation n from 1 to infinity an cos n pi x by L plus bn sin n pi x by L, right? Now, अब ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज। हमने सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ लिया मैथ्स 1 में, सो इट मे और मे नॉट कन्वर्ज, इट मे और मे नॉट कन्वर्ज, ना बेटा? हमने पढ़ा है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज है, दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, तो हो सकता है वो कन्वर्ज करे, हो सकता है ना करे। तो कैन यू टेल मी व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ फूरियर सीरीज? कौन सी कंडीशंस हैं which will ensure कि फूरियर सीरीज कन्वर्ज करेगी बेटा? वो खैर आपको शायद थ्योरम वो कराई नहीं होगी, ठीक है, बट अगर मैं लिख देती हूँ कि इफ f of x and f dash x are piecewise continuous, इसका प्रूफ नहीं कराया होगा आपको क्लास में, बट आपको पता होना चाहिए कि अब ये सीरीज बन गई ना एक, जरूरी तो नहीं ये कन्वर्ज करेगी। जैसे हमने लास्ट मैथ्स 1 में किया था, फंक्शन था, उसकी टेलर सीरीज लिखी थी, फिर टेलर सीरीज कई बार नहीं कन्वर्ज करती थी। डू यू रिमेम्बर बेटा? यस मैम। Same is here. You are given a function f of x. You have written its Fourier series. It may or may not converge. अगर converge करती है तो if you write like this, अगर आप ये लिख रहे हो ना f of x is equal to a0/2 summation n from 1 to infinity an cos of n pi x by L plus b, ऐसे लिख रहे हो बेटा? तो ये गलत है एक्चुअली, बट हाँ लिखते हैं फिर भी लोग, बट क्योंकि this is true only when this series is convergent and the sum is equal to f of x. जरूरी नहीं है sum f of x के बराबर होगा। Okay, so we have this thing कि at the point of continuity, at the point of continuity, Fourier series converges to value of f of x, ठीक है बेटा? And at the point of discontinuity, suppose x is equal to a is the point of discontinuity, उस केस में Fourier series converges to the average value, left hand limit at a plus right hand limit at a divided by 2. Got it बेटा? And at the end points, जैसे आपका इंटरवल है मान लो -L to L, तो यहाँ पे जो है वो Fourier series किसको कन्वर्ज करती है? That converges to -L पे राइट हैंड लिमिट और L पे लेफ्ट हैंड लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों पॉइंट्स पे जो फूरियर सीरीज है वो इन वैल्यूज को कन्वर्ज करती है, तो यू शुड नो दीज थिंग्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस। सो लुक एट द सेकंड क्वेश्चन कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पे फूरियर सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज करेगी। नाउ कैन यू टेल मी x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी? Look at the function and tell me whether x is equal to 0 is the point of discontinuity or continuity. Continuity, ma'am. Continuity है ना बेटा, है ना? So x is equal to 0, at x is equal to 0, left hand limit is 1, है ना, यहाँ से, and right hand limit is also 1. Therefore, it is point of continuity. It is point of continuity. Therefore, Fourier series
will converge to पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पे कहाँ पे कन्वर्ज करती है बेटा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 पे कन्वर्ज करेगी। f ऑफ 0 क्या है? वो चाहे इधर से कंप्यूट कर लो, वैसे यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा हुआ तो यहाँ से कंप्यूट करोगे आप, इज 0 + 1। तो 1 पे at x is equal to 0 Fourier series converges to 1, है ना? Fourier series is an infinite series, so we are saying when you put x is equal to 0, x is equal to 0 पुट करोगे तो ये एक इनफाइनाइट ऐसा सीरीज बन जाएगा जिसका सम आपने मैथ्स 1 में निकाला है। So we are saying the sum will be 1. Understood, beta? Now the next question is, to what value it will converge? Look at the function and tell me x is equal to pi by 2 is point of continuity or discontinuity? Discontinuity, ma'am. So at x is equal to pi by 2, you see this is the left hand limit. Left hand limit is going to be pi by 2 plus 1 and right hand limit is going to be 2 into pi by 2. So they are not equal. Therefore, point of discontinuity. discontinuity. So Fourier series will converge to, therefore, Fourier series will converge to average of left hand limit and right hand limit. The left hand limit we have pi by 2 plus 1 and right hand limit we have pi by 2. So what is this? This is 3 pi by 4 plus half. Understood, beta? So at x is equal to pi by 2, the Fourier series will converge to this value. समझ आ गया बेटा? मैम Yes, बेटा? मैम ये पॉइंट दोबारा बता दीजिए, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्यों कन्वर्ज कर रहा है? नहीं, पाई बाय 2 पे नहीं कन्वर्ज कर रहा है। देखो ये आपका इंटरवल है -पाई टू पाई, ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि इसकी फूरियर सीरीज लिखी आपने, ठीक है? अब जो फूरियर सीरीज लिखी, क्योंकि उसमें x है तो उसकी वैल्यू अलग अलग होगी ना हर x के लिए, है ना बेटा? यस तो मैम। यहाँ पे इस इंटरवल में एक पॉइंट पड़ा है 0, एक पॉइंट पड़ा है पाई बाय 2, एक पॉइंट पड़ा है पाई। सो द क्वेश्चन इज कि x इज इक्वल टू 0 अगर मैं फूरियर सीरीज में पुट कर दूं तो फूरियर सीरीज किसको कन्वर्ज करेगी? क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज है तो उसका सम क्या होगा? ठीक है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। सो नाउ वी हैव दिस थ्योरम व्हिच टेल्स अस अगर x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, तो व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, टू दैट वैल्यू द फूरियर सीरीज विल कन्वर्ज। ये स्टेटमेंट समझ में आई बेटा? यस मैम। एंड अगर x is equal to a is the point of discontinuity, if x is equal to a is the point of discontinuity, the Fourier series at that point will converge to the average of left hand limit and right hand limit. ये statement समझ में आई बेटा? ओके मैम। यस। Okay, now you see because pi by 2 here is a point of discontinuity. वो तो समझ आ रहा है ना बेटा? अगर left hand limit and right hand limit not equal, then it is a point of discontinuity. डिसकंटिन्यूटी। So the Fourier series will converge to the average of left hand limit and right hand limit. So this is the value to which the Fourier series will converge, or you can say that this is the sum of the Fourier series. Okay? यस मैम। And now the next one, x is equal to pi. ये तो end point है. So end point x is equal to pi is the end point of the interval or boundary point. Boundary point. तो आपने ऐसे याद रखना है बेटा, देखो -पाई टू पाई है ना, तो इसका मतलब बाहर हमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इस साइड से तो हम कौन सी लिमिट निकाल सकते हैं? सिर्फ राइट हैंड लिमिट, और इस साइड से कौन सी लिमिट निकाल सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो याद रहेगा कि एट द बाउंड्रीज इट विल कन्वर्ज टू द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जो भी राइट बाउंड्री पॉइंट है प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ व्हाटएवर इज योर लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए पाई की तरफ से लेफ्ट लिमिट क्या है? 2 पाई, और माइनस पाई की तरफ से राइट लिमिट क्या है? 1। ओके, बाय 2। सो द फूरियर सीरीज विल कन्वर्ज टू पाई बाय 2 + 1। बताओ बेटा, किसी को डाउट इस पे? ओ मैम। ओके, सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सिंपल, यू हैव टू जस्ट राइट द फूरियर सीरीज। किसी ने ट्राई किया बेटा ये प्रॉब्लम्स? ओके, सारे अब एक जैसे हैं। मैं वो करा रही हूँ आपको हाफ रेंज। हाफ रेंज याद है किसी को? हाफ रेंज फूरियर सीरीज। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, यू विल डू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा,
मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर भी करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट, क्योंकि इसमें ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, शो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 समेशन n from 1 to infinity minus 1 raised to power n cos of nx upon n square. ठीक है, इंटरवल इज माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। एंड ये कैसे शो करोगे? ये वैसे ऐसे लिखना नहीं चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए शो दैट द फूरियर सीरीज ऑफ एक्स स्क्वायर इज दिस, बट क्योंकि एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है ना बेटा, यस मैम, बेटा एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर जगह पे फूरियर सीरीज विल कन्वर्ज टू इट्स वैल्यू, इसलिए अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऐसे लिख सकते हैं, राइट? सो दिस इज नॉट रॉन्ग। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये तो आप अपने आप कर लोगे, दिस इज जस्ट यू राइट द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर इंटरवल एंड यू कैन सी एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू आ रही है, ए एन की आ रही है, बी एन की नहीं आ रही ना, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज hence deduce that summation 1 by 2n minus 1 square is equal to pi square by 8। ये कैसे करोगे, ये बता सकता है कोई? कैसे करोगे बेटा इसको? एनीबडी? क्या करें? ये आपके पास आ गया, फिर मुझे ये शो करना है। 2n minus 1 का स्क्वायर, x को क्या पुट करूं? व्हाट शुड आई पुट x कि ये सीरीज बन जाए आपकी? यहां से देखो, ऑड लेके आना है, इसका मतलब आपने यहाँ पे ऐसी चीज डालनी है कि ये जो वैल्यू है दैट बिकम्स 0 फॉर n इवन। cos x कहाँ 0 होता है? 90, यहाँ पे 0 होता है ना, तो x को क्या पुट करूं मैं? अगर x को पाई बाय 2 पुट करूं मैं, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना, इंटरवल के अंदर है, और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, so Fourier series will converge to its value, therefore Fourier series will converge to f of pi by 2 which is pi by 2 का square. So what I will get, I'll get pi by 2 का square is equal to pi square by 3 plus 4 summation n from 1 to infinity minus 1 raised to power n cos n pi by 2 n square, right बेटा? तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, pi square by 4 minus pi square by 3, okay, is equal to 4। अब ये बताइए क्या है, tell me what is this, cos n pi by 2, बताओ बेटा। an, नहीं बेटा, जब आपका n 1 है उस केस में ये 0 हो जाएगा, am I correct? है ना, Yes, cos ma'am. pi by 2 Yes, 0 हो ma'am. जाएगा। फिर जब n 2 है उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये cos पाई हो जाएगा, इट विल बी -1 बाय, जब n क्या है 2, cos पाई कितना होता है -1। जस्ट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, हमें 2n - 1 स्क्वायर चाहिए ना, और हाउ मच इज दिस, 2n - 1 स्क्वायर, मतलब n को 1 पुट करोगे 1 by 1 स्क्वायर चाहिए, और अगर n 1 डाल रहे हैं तब ये नहीं आ रहा है हमारा ना, तो हम ये नहीं डाल सकते, पाई बाय 2 नहीं डालेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू पाई, पाई डालना बेटा, एक मिनट चेक करना, यही चेक करना होता है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप क्या पुट करोगे। ये डालने से वो सीरीज नहीं बन रही आपकी, आपको समझ में आया क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मेरे पास नीचे 2 स्क्वायर आ रहा है ना, मुझे तो ऑड चाहिए, यहाँ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा चाहिए, तो पुट x इज इक्वल टू पाई पुट कीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज़ टू पावर n cos n पाई अपॉन n स्क्वायर। अब ये क्या बनना है मेरा, 2 पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4 समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी,
अब देखिए बेटा, जब n को 1 पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, ये क्या बन जाएगा, ये -1, ये भी -1 है ना, तो ये +1/1²। जब n को 2 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यस यू गेट इट। और n = 3 पुट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, -1 यहाँ से, और 1/3²। हाँ 1/3², 1/5² प्लस so on, राइट। तो आपके पास ये आ रहा है 5²/3 है ना यहाँ पे, ओके कुछ आंसर में गड़बड़ है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन इज हाउ मच, 5²/6 आ रहा है ना। और ये आपका क्या हो गया, समेशन 1/2n-1 का स्क्वायर इज 5²/6। ये आंसर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 5²/8 लिखा हुआ ना, सीरीज यही है। और आपका x = पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में निकालोगे तो भी वो पाई स्क्वायर ही आएगी, ठीक है, बाय 2। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत किया ना बेटा, समझ आ गया सबको क्या गलती की है, यहाँ पे बाय 2 आएगा ना, क्योंकि दिस इज द बाउंड्री पॉइंट। ओके बेटा, सो बाउंड्री पॉइंट पे सीरीज किसको कन्वर्ज करती है, पाई² प्लस पाई²/2। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, पाई²/6, राइट। तो यहाँ पे आपका पाई²/6 है ना, तो भी ये वाला आंसर नहीं आ रहा मेरा, पाई²/2, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 - 2 पाई²/6 डिवाइडेड बाय 24। कैलकुलेशन गलत है, या तो देखना बेटा कहीं कैलकुलेशन गलत कर रही हूँ, आंसर में प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से यार है। ओके आई विल चेक, है ना, मैं आपको बता दूंगी, कैलकुलेशन दोबारा कर लूंगी, बट दिस इज हाउ यू हैव टू डू बेटा, ठीक है। कि आपने एक बार फूरियर सीरीज लिख ली, कैन यू सी एट क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आल्सो बेटा, वंस यू हैव रिटन द फूरियर सीरीज, उसके बाद आपने कोई वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि वो सीरीज बन जाए जब सम ऑफ द सीरीज निकालना है। दैट वाज माय पॉइंट एक्चुअली, अंडरस्टूड बेटा, समझ आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा ठीक है, तो अभी हमारा टाइम हो गया ना, 10:30 पे खत्म हो जाती है ना क्लास, यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज इसको ट्यूटोरियल शीट को फिनिश करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ट्यूटोरियल्स मोर, है ना, 2 वीक्स की क्लासेस रह गई हैं एंड वी हैव 3 शीट्स टू फिनिश। तो आपके नेक्स्ट टाइम मैं ट्यूटोरियल 6 के डाउट्स लूंगी एंड विल कंटिन्यू विद ट्यूटोरियल 7। ओके बेटा, और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट, डू वेल। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, स्टिल वी हैव 2 minutes। ओके देन, ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके बेटा।